And now, the next speaker for this session is Miss Julia. She's a research scholar in the same department, Department of Sanskrit, Faculty of Arts, Banaras Hindu University. She's originally from Italy, but Julia is a dedicated learner of Indian philosophy, and she represents the growing global academic engagement with Indic thought traditions. We invite you to present your paper. And her paper is titled Memory and Sanskar in Nyaya Philosophy. I need to communicate her about the limit of time. Yeah, okay. How much? You know, you know Five about minutes. 5 minutes. 5 minutes. No, 30 minutes. Okay. you should be aware about the time of your session. You may shorten it after a while. सब लोगों को मेरा प्रणाम करती हूँ. I will speak in English. So, Nyaya philosophy is mainly focused in knowledge and in the means of knowledge and in the correct procedure in critical reasoning. It carries out in-depth research on what we know and how we know. Through the study of Nyaya, we learn to discriminate between correct and incorrect means of knowledge, correct and incorrect cognitions, so that we become more careful in our judgments and we do not jump to conclusions without having considered all the aspects of a problem. Hence, we acquire clarity of thought that helps us to face and resolve a wide variety of situations we may face in our life. And as well, deepen our understanding on various aspects of the reality surrounding us. One of the contributions of Nyaya to the study of mankind is the investigation on memory. Memory is a topic that even in modern time has been researched upon by philosophers and scientists. From where memory arises and which effects has memory in the development of personality of an individual are among the questions which are tried to be answered. In this field, Nyaya philosophy gives a brilliant exposition on samskara as a cause of memory. Before entering in the subject matter of samskara, we have to spend few words on the concept of Atman, the self. Generally, in Nyaya texts, the word Atman indicates Jivatma, the individual self in a body. Atman is an eternal and all-pervading substance. It is the Sarvasya Drishta, the Sarvasya Bhokta, Sarvagya, Sarvanubhavi. Atma is the idea of I that everyone has. It is the agent capable of knowledge, will, and action. Atma is endowed with specific qualities. Among these, there is buddhi, knowledge, and buddhi is that quality by which objects are made known. All living beings deal with the objects of the world on the basis of one's own kind of knowledge. Hence, it is said, Sarva Vyavahara Gyanam Buddhihi Sad Vividha Smritir Anubhavascha. Knowledge is regarded as the cause of all behaviors and verbal expressions of a living being. Nyaya system distinguishes two kinds of knowledge, remembrance, smriti, and direct presentative cognition, anubhav. Thus, buddhi includes past and present cognition. Ontologically, anubhav, which includes pratyaksha, anumiti, upamiti, and shabda, is a fresh, new, short-lived, episodic knowledge. In the case of knowledge known as remembrance, it is said that its specific characteristic is to be produced by samskara. Both anubhava and smriti are non-eternal, as recognized by all living beings. Now, what are the causes involved in the operation bringing about remembrance? Remembrance, being a kind of knowledge,
is a specific quality of Atman, and it resides in Atman through a relation of inherence, samavai sambandha. Therefore, Atma is considered the inherent cause, samavai karan, of Smriti, because Smriti arises and resides in Atma. Smriti, as well as all the other special guna of Atma, is produced by the conjunction of the self and the mind. Nyaya system considers this conjunction between Atma and Manas as the non-inherent cause, asamavaikaran, of all the specific qualities of the self. Therefore, that conjunction is recognized as having a universal causal efficiency. For a clear understanding of the fundamental importance of this conjunction, we consider the fact that a being is considered living when the mind comes in contact with an embodied self, and this contact happens along with karmic residua that have become to fructify, prarabdha karma. Atma is an eternal substance, and as such, it never changes. But the conjunction between Atma and Manas is not eternal and undergoes changes according to its operations. So I have to jump to conclusion. I don't know if you understand. Anyway, so from what has been expounded, we have seen that according to Nyaya, Buddhi is the cause of all behavior, and Anubhava and Smriti cooperates together in building up our behavior. The more we know, the better, easier, and happier will be our life. Both Anubhava and Smriti depend upon the conjunction of the self with the mind. For a real acquisition of knowledge, we need to be mindful, to keep our mind concentrated. But mind, by its very nature, is unstable and has the tendency to fly in various places and time. To keep our mind concentrated in what we are experiencing in the present is of crucial importance, because it is concentration of mind that makes our experience complete and capable of producing a strong samskara, which is conducive to the rise of memory. Since mind is a tool of our disposal, we can control and educate it to form good habits. We have always to check where is our attention. When we realize that mind is escaping somewhere else, we mentally have to stop, take a step back, and take a deep breath. This is a very simple practice that enables us to bring back our mind to the present moment. Actually, we can see that this is an exercise of remembrance. We remind our mind to come back to ourselves so that we regain the state of mindfulness. It is noteworthy that one of the words to translate mindful in Sanskrit is smritiman. Thank you, Julia ji, for such a profound and insightful presentation. और अब मैं सादर आमंत्रित करती हूँ इस टेक्निकल सेशन के अध्यक्ष आदरणीय प्रोफेसर अंबिका दत्त शर्मा जी को, पूर्व अध्यक्ष दर्शन विभाग डॉक्टर हरि सिंह गौड़, सागर केंद्रीय विश्वविद्यालय। प्रोफेसर शर्मा जी से निवेदन है कि वे अध्यक्षीय उद्बोधन द्वारा आज के सत्र को दार्शनिक समग्रता प्रदान करें। कितना समय है? आप देखो कितना समय बचा है आपके, कितना है फिर भी? सदाशिव जी, कितना समय बचा है? अरे नहीं, ऐसा नहीं है। अध्यक्ष के द्वारा भी अतिचार नहीं किया जाना चाहिए। गुरुजी, हम लोग सुना जाते हैं कृपया। अच्छा, जितना आप बताएंगे हम लोग सुनेंगे। वंदे महीचताम वाचम अमृताम आत्मनः कलाम। भारतीय ज्ञान परंपरा में लोक और शास्त्र का समन्वय, इस प्रथम तकनीकी सत्र में वक्ता के रूप में विराजमान हम सभी लोगों के अत्यंत
श्रद्धेयास्पद प्रोफेसर अवधेश प्रधान जी, प्रोफेसर मनुलता शर्मा जी, सुश्री जूलिया पुचेट्टी जी और डॉक्टर लूसी गेस्ट, और इस सत्र का बहुत ही चित्त प्रसादक वाग्मिता से संचालन कर रही डॉक्टर सिद्धिदात्री भारद्वाज, और सभागार में मेरे समक्ष उपस्थित इस पूरी आयोजना के सूत्रधार और समन्वयक और एक बहुत ही समृद्ध परंपरा के सशक्त उत्तराधिकारी प्रोफेसर सदाशिव द्विवेदी जी, हम लोगों के लिए बहुत ही श्रद्धेयास्पद प्रोफेसर आचार्य प्रवर कमलेश झा जी, विजय शंकर शुक्ला जी, परांजपे मैडम, और सभागार में उपस्थित बहुत सारे मेरे समानशील सहधर्मी, विद्या से अनुराग रखने वाले सुहृदजन, प्यारे शोधार्थियों और विद्यार्थियों। भारतीय ज्ञान परंपरा में लोक और शास्त्र का संबंध या समन्वय, यह विषय कभी उलझा हुआ नहीं रहा, लेकिन इतना सुलझा हुआ विषय आज क्यों उलझ गया कि हम सारे संस्कृत विद्या में अधीत व्यक्तियों को लोक और शास्त्र में अब समन्वय और संबंध की जिज्ञासा करनी पड़ रही है। ये बहुत ही सुलझा हुआ विषय था, कभी इस बात को लेकर हमारी परंपरा में प्रश्न नहीं उठाया गया। लोक और शास्त्र को कभी द्वैरास्य में बांटकर कभी नहीं देखा गया। तो आखिर क्या कारण है कि आज हम लोग इतने आत्मचेतन तरीके से लोक और शास्त्र के संबंध और समन्वय को फिर से जांचने परखने के लिए उत्सुक हो गए हैं? आप लोगों ने देखा कि प्रोफेसर अवधेश प्रधान जी ने पाणिनि कालीन भारत, जो प्रातः स्मरणीय वासुदेव शरण अग्रवाल की विश्वविख्यात कृति है, उसमें किस तरह से उन्होंने दिखाया कि पाणिनि ने लोक को कितने गहरे में पहचाना होगा और तब उसको पहचान कर ही अष्टाध्यायी का निर्माण किया होगा। सारे धातु प्रत्ययों की अंततः प्रामाणिकता लोक सिद्ध ही है। तो हमारा पूरा का पूरा जो व्याकरण शास्त्र है वो किस तरीके से लोक को अपने में अंतर्निहित किए हुए रहता है, इसकी बहुत अच्छी वानगी प्रोफेसर अवधेश प्रधान जी ने प्रस्तुत किया। और डॉक्टर मनुलता शर्मा मैडम का क्या कहना, उन्होंने पूरे भारतीय वाङ्मय में विभिन्न प्रकार के मतलब प्रामाणिक अर्थ संदर्भों को ध्यान में रखते हुए ये बात उन्होंने दिखाने का प्रयास किया कि मेरे लोक जीवन के जो सप्त स्वर हैं उसमें भी किस प्रकार शास्त्र परंपरा के ही खड़ज, धैवत और पंचम सुर उसमें व्यंजित होते हैं। इसको बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने दिखाने का प्रयास किया। और डॉक्टर लूसी गेस्ट को सुनना सदैव अपनी चेतना को अतिक्रांत करना होता है। वो विषय को केंद्र में रखकर भले न बोलें, लेकिन उनकी वाणी जितने पवित्र हृदय से निकलती है वो उतनी ही पवित्रता के साथ श्रोता को स्पर्श भी करती है। और वस्तुतः उनके पूरे वक्तव्य का जो सार था कि शास्त्र और लोक के बीच के अगर समन्वय को आपको समझना है तो उसके बीच में आपको तप को रखना पड़ेगा, क्योंकि तपोभूत व्यक्ति के द्वारा ही शास्त्र आचरण में उतरता है और आचरण से फिर वह लोक में प्रवाहित होता है। इसलिए तप को आपको सेतु बनाना पड़ेगा।
और जूलिया ने बहुत अच्छा न्याय दर्शन को संदर्भ बना के आत्मा के संदर्भ में, स्मृति के संदर्भ में कुछ विचार किया। मित्रों, जरा ये विचार कीजिए कि भारतीय ज्ञान परंपरा या भारतीय संस्कृति की आत्म प्रतिमा क्या है। तो सुबुद्ध विद्वानों ने इस प्रश्न पर विचार करते हुए ये निष्कर्ष निकाला कि भारतीय ज्ञान परंपरा या भारतीय संस्कृति की जो आत्म प्रतिमा है, उसका जो सेल्फ इमेज है, वो दो मौलिक प्रत्ययों से बनता है। और वो दो मौलिक प्रत्यय हैं धर्म और मोक्ष। आचार्य कमलेश झा जी यहाँ बैठे हैं। मोक्ष का संबंध स्वरूप सिद्धि से है और धर्म का संबंध लोक सिद्धि से है। स्वरूप सिद्धि का अनुवाद योग के माध्यम से होता है, अर्थात वह योग के माध्यम से सिद्ध होता है। यदि मोक्ष स्वरूप सिद्धि फल है तो उसका साधन योग बनता है, और लोक सिद्धि यदि फल है धर्म का तो उसका साधन यज्ञ बनता है। तो धर्म और मोक्ष, लोक सिद्धि, स्वरूप सिद्धि, यज्ञ और योग, ये जो भारतीय ज्ञान परंपरा और भारतीय संस्कृति की जो आत्म प्रतिमा बनती है, उसमें लोक और शास्त्र में कहाँ द्वैरास्य है। लोक और शास्त्र में कहीं द्वैरास्य नहीं है। लेकिन कभी कभी आप देखेंगे दर्शन परंपरा में तो आपाततः आपको दिखाई पड़ेगा कि शास्त्रकार जो है वो कभी कभी लोक प्रतीति, लोकानुभव और लोक का के विरुद्ध चला जाता है। ऐसा आपाततः प्रतीत होता है। जैसे मैं छोटे उदाहरण बताऊं, यहाँ बहुत सारे रिसर्च स्कॉलर्स हैं। प्रमाण की दृष्टि से प्रत्यक्ष का सीधा सीधा संबंध लोक से बनता है, इसीलिए प्रत्यक्ष को सबसे लोक का बलवत्तर प्रमाण माना जाता है। लेकिन जब हम प्रत्यक्ष को परिभाषित करते हैं तो वेदांती कहेंगे चैतन्यम प्रत्यक्षम, नैयायिक कहेंगे कि इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम अव्यपदेश अव्यभिचारी व्यवसायात्मकम ज्ञानम प्रत्यक्षम, और बौद्ध कहेंगे प्रत्यक्षम कल्पनापोढ़म अभ्रांतम। अब ये देखिए, प्रत्यक्ष जैसे लोक से सीधे हुए जब किसी प्रमाण को हम परिभाषित करते हैं तो इस परिभाषा में इतना वैचित्र्य है। प्रत्यक्ष का विषय जब निर्धारित करना होता है तो वेदांती कहेंगे कि यद साक्षात अपरोक्षात तद ब्रह्म। प्रत्यक्ष का विषय ब्रह्म है। हमको प्रत्यक्ष का विषय घटपट दिखाई पड़ता है। बौद्ध कहेंगे कि प्रत्यक्ष का विषय त्रैलोक्य व्यावृत स्वलक्षण है, जो कहीं लोक और व्यवहार में उतर ही नहीं सकता है। नैयायिक कहेंगे कि प्रत्यक्ष का विषय जाति विशिष्ट व्यक्ति है, और मीमांसक कहेंगे कि सामान्य और विशेष का जो आश्रय व्यक्ति है वो प्रत्यक्ष का विषय है। तो यहाँ आपको लगेगा कि देखिए, प्रत्यक्ष जैसे इतने इनोसेंट एंड सैक्रोसेंट चीज की हम जब दर्शन शास्त्र में ऐसी परिभाषा अपनी ज्ञान परंपरा में करते हैं तो ये कहाँ लोक से जुड़ता है। लेकिन हमें सदैव इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि एक शास्त्रकार जब शास्त्र का निर्माण करता है तो क्या करता है? वो शास्त्रकार जब शास्त्र का निर्माण करता है तो उसके पीछे क्या दृष्टि रहती है? ये सब बहुत तकनीकी चीज़ हैं और पद्धति शास्त्र मूलक चीज़ें हैं कि शास्त्र और लोक कैसे एक दूसरे से जुड़ते हैं, शास्त्र कैसे निर्मित होता है।
सदैव मित्रों इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि शास्त्र नियामक होता है और लोक नियमित होता है। शास्त्र नियामक होता है और लोक नियमित होता है। लोक से शास्त्र कभी नियमित नहीं होता है, मतलब लोक को कभी नियामक की भूमिका नहीं दी जा सकती है। सदैव नियामक की भूमिका में शास्त्र होता है, लेकिन शास्त्रकार सदैव लोक प्रतीति का कभी भी अनादर नहीं करता है। लोक प्रतीति से अपना सामंजस्य बनाने के लिए जब वो शास्त्र का निर्माण करता है तो सदैव वह अबाधित लोक में अबाधित प्रतीति को वह स्वीकार करता है। इसीलिए शास्त्र निर्माण की पहली शर्त होती है अबाधित प्रवृत्ति का स्वीकार्य। अब देखिए, लोक दृष्टि में पृथ्वी आपको गोल नहीं दिखाई पड़ती है, चपटी दिखाई पड़ती है, लेकिन बलवत्तर प्रमाण के कारण इस लोक प्रतीति के विरुद्ध पृथ्वी को वर्तुलाकार प्रमाण से सिद्ध किया जाता है। तो जब तक लोक प्रतीति के विरुद्ध कोई बलवत्तर प्रमाण उपलब्ध न हो तब तक शास्त्रकार को अपनी प्रमाण मीमांसी दृष्टि में सदैव अबाधित लोक प्रतीति का आदर करना पड़ता है। यदि वो ऐसा नहीं करेगा तो शास्त्रकार धरती पर खड़े होने का स्थान ही खो देगा। तो शास्त्र निर्माण की पहली शर्त है अबाधित लोक प्रवृत्ति का तब तक आदर करना जब तक उसके विरोध में कोई बलवत्तर प्रमाण उपलब्ध न हो जाए। शास्त्र निर्माण की प्रक्रिया में जो दूसरी जो लोक से जुड़ने की बात होती है वो होती है कि सदैव शास्त्रकार इस बात का ध्यान रखता है कि वो यथोपलब्धि व्यवस्था न्याय का अनुसरण करे। यथोपलब्धि व्यवस्था न्याय। प्यारे बच्चों, ये सब शास्त्र निर्माण के बहुत ही तकनीकी और पद्धति मूलक शब्दावलियां हैं। देखिए कैसे समझें यथोपलब्धि व्यवस्था न्याय को। दर्शन शास्त्र के संप्रदायों में विचार किया जाता है कि किसी चीज की जो का प्रामाण्य है या तो वो स्वतः हो सकता है या तो परतः हो सकता है। इसका बहुत विचार होता है। या तो वैलिडिटी ऑफ नॉलेज विल बी इंट्रिंजिक और एक्सट्रिंजिक, यही दो पद्धतियां हो सकती हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि यथोपलब्धि व्यवस्था न्याय में हम ये दो ही कोटियों में बांट के हम प्रामाण्य की विवक्षा का लोक में समाधान नहीं कर सकते। तो हमें दोनों स्थितियां कहीं कहीं स्वीकार कर लेनी पड़ेगी लोक के दबाव में कि नहीं, कहीं प्रामाण्य स्वतः भी होता है और कहीं प्रामाण्य परतः भी होता है। तो ये लोक प्रतीति में मतलब ये सदा यथोपलब्धि व्यवस्था न्याय को हमें स्वीकार ही करना पड़ता है। जैसे बहुत साधारण चीज ले लीजिए, लोक में हमें दिखाई पड़ता है कि बालू से तेल नहीं निकलता है। तो अगर इसको हम उदाहरण और दृष्टांत बनाएंगे तो कार्य कारण का सिद्धांत जो बनेगा वो असत कार्यवाद बनेगा कि सदैव कार्य एक नवीन उत्पत्ति है और अपनी उत्पत्ति से पूर्व वो कारण में नहीं रहता है। असत कार्यवादी दृष्टि बनेगी लोक में। लेकिन इसी लोक में मुझे दिखाई पड़ता है कि तिल से तेल निकलता है और बालू से तेल नहीं निकलता है, तब हमें सांख्य के सत्कार्यवाद की ओर जाना पड़ेगा कि अगर कारणता पर हमें विचार करना है तो लोक प्रतीति की अधीनता में हमें कारणता के सत्कार्यवादी सिद्धांत को स्वीकार करना पड़ेगा। असत कारणात् उपादान ग्रहणात् शक्तस्य शक कारणात् कारण भावाच्च सत् कार्यम, ये हमें युक्ति हमें मतलब लौकिक दृष्टि से प्राप्त हो जाती है। यथोपलब्धि व्यवस्था न्याय के अतिरिक्त एक शास्त्रकार को अपने शास्त्र निर्माण में अन्यथा अनुपपत्ति न्याय का भी अनुसरण करना पड़ता है। अन्यथा अनुपपत्ति न्याय का मतलब होता है कि जब अनुभव के क्षेत्र विशेष में किसी तथ्य की उपपत्ति अनुभव के अन्य किसी क्षेत्र में प्रसिद्ध तथ्य मूलक प्रारूप को अपनाने के बिना संभव नहीं होती, तब अगत्या उस प्रारूप को स्वीकार करना आवश्यक हो जाता है।
तो एक शास्त्रकार को सदैव अन्यथा अनुपपत्ति न्याय का भी सहारा अपने शास्त्र निर्माण में लेना पड़ता है। फिर आप देखिए कि जब हम शास्त्र का निर्माण करते हैं तो हमें देखते हैं कि हमारे शास्त्र में व्याघात नहीं होना चाहिए, कंट्राडिक्शन नहीं होना चाहिए। अब व्याघात के कई प्रकार हैं। सदाशिव जी बैठे हैं, गुरु जी कहा करते थे कि 3 प्रकार के व्याघातों पर तो जरूर सदैव एकदम स्मरण में रखना चाहिए कि स्ववचन व्याघात, स्वक्रिया व्याघात और स्वज्ञान व्याघात। इससे सदैव शास्त्रकार को बचना चाहिए। अब ये देखिए कि स्ववचन व्याघात, स्वक्रिया व्याघात और स्वज्ञान व्याघात ये निर्णित कहाँ होगा? ये तो लोक में ही होगा ना, लोक से ही ये बनेगा ना। और अंत में ये शास्त्रकार को विनिगमना विरह का ध्यान रखना पड़ता है। तो ये शास्त्र के कुछ ऐसे पद्धतिमूलक बातें हैं जिससे ऐसा लगता है कि भारत में शास्त्र का जो निर्माण हुआ वो सदैव लोक को अनुशासित करने के लिए हुआ। लेकिन लोक और शास्त्र में अगर आप उसके वॉल्यूम को देखना चाहें, उसके परिव्याप्ति को देखना चाहें, तो लोक में स्वच्छंदता, लोक में स्वातंत्र और लोक की परिव्याप्ति कभी कभी शास्त्र से ज़्यादा होती है। जैसे मैं एक उदाहरण बताऊं आपको, प्रसंग बस। वाल्मीकि रामायण का ये प्रसंग है कि राम की अंतिम परीक्षा, सदाशिव जी राम की अंतिम परीक्षा महाकाल मानो ले रहे हैं। तो वहाँ प्रसंग आता है कि या तो वो लक्ष्मण का वध करें या तो सत्य भ्रष्ट हो जाए। ये 2 ही स्थिति आती है। अब देखिए, इस दुविधा से निकलने के लिए शास्त्र कहीं हमारी मदद नहीं कर रहा है। शास्त्र कहेगा कि भाई अगर आप लक्ष्मण का वध नहीं करते हैं तो जीवन भर जो आप सत्यव्रती होने की जो आपने मतलब जो जिसका पालन किया है उससे आप भ्रष्ट होंगे, और अन्यथा आप अपने प्रिय भ्राता का वध कीजिए। शास्त्र यहाँ मदद नहीं करता, आचार्य वहाँ खड़ा होता है। और आचार्य वशिष्ठ आते हैं और क्या समाधान देते हैं कि त्यागो बधो व विहितम साधु नाम उभयम समम, कि किसी व्यक्ति का त्याग अथवा वध साधु व्यक्ति के लिए समान होता है। त्यागो वधो व विहितम साधु नाम उभयम समम। अब ये आचार्य की प्रतिभा है कि लोक में उत्पन्न शास्त्र और लोक के बीच की विप्रतिपत्ति को आचार्य अपनी प्रतिभा से कैसे संभाल लेता है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको भारतीय ज्ञान परंपरा में मिलेंगे कि जहाँ आचार्य अपनी, इसीलिए कहा जाता है कि वास्तविक आचार्य वो है जो शास्त्र से निर्देशित नहीं होता बल्कि शास्त्र को भी निर्देशित करता है, शास्त्र को भी निर्देशित करता है। तो शास्त्र और लोक के संबंध को हम अपने सघन कर्ममय जीवन में जब हम इसको देखने का प्रयास करते हैं तो कभी कभी हम लोगों को सदैव इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि शुक्ला सर, संस्कृति के 2 पक्ष होते हैं। संस्कृति का एक स्वरूप पक्ष होता है और संस्कृति का एक अभिव्यक्ति पक्ष होता है। संस्कृति का जो अभिव्यक्ति पक्ष होता है उसमें रोज रोज बदलाव उत्पन्न होते थे, कभी बाहरी प्रभावों से और कभी आंतरिक कारणों से। ये एक बिल्कुल गतिशील अवधारणा है कि संस्कृति का अभिव्यक्ति पक्ष जो है उसमें बहुत तेजी से बदलाव आते हैं। लेकिन संस्कृति का जो स्वरूप पक्ष होता है उसमें बदलाव नहीं आते हैं। तो संस्कृति का स्वरूप पक्ष जो होता है वो शास्त्र के विपरीत अगर लोक में प्रवृत्तियां उत्पन्न हो रही होती हैं तो संस्कृति का स्वरूप पक्ष सदैव उसे अनुशासित करता है और उन विकृतियों को परिमार्जित भी करता है। आप भारतीय संस्कृति के गतिशील जीवन के इतिहास में देखिए तो लोक और शास्त्र, संस्कृति के स्वरूप पक्ष और अभिव्यक्ति पक्ष की ये जुगलबंदी जो होती है वो एक शास्त्रीय गायन की तरह होती है। जैसे आप देखिए
कि एक ही भैरवी राग को या एक ही दरबारी राग को अलग अलग घराने के उस्ताद अलग अलग ढंग से गाते हैं, लेकिन राग वही रहता है। उसको साधने के तरीके अलग अलग हो जाते हैं घरानों के हिसाब से। एक गायक पता नहीं आलाप झाला लेते हुए कितना विस्तार लेता है, लेकिन कभी भी वो अपने धुन को और अपने राग को छोड़ता नहीं है। उसी तरीके से लोक और शास्त्र की जो हमारे सांस्कृतिक जीवन में जो जुगलबंदी होती है वो उसी तरीके से होती है कि शास्त्र जो होता है वो सदैव राग की तरह होता है और लोक जो होता है वो सदैव धुन की तरह होता है। और राग और धुन की ये जुगलबंदी जब तक किसी संस्कृति में, किसी सांस्कृतिक व्यवस्था में चलती रहती है, तब तक उसकी निरंतरता, उसकी गतिशीलता, उसकी सृजनात्मकता बनी रहती है। और जब इसमें कहीं न कहीं से हस्तक्षेप पैदा होता है कि हमारा शास्त्र हमारे लोक जीवन को अनुशासित और संबोधित नहीं करता है और हमारा लोक जीवन किन्हीं दूसरी प्रकार की ज्ञान परंपरा या शास्त्र परंपराओं से प्रेरणा ग्रहण करने लगता है, तो हमारे लोक जीवन में विकार उत्पन्न होता है। और आज हम लोग जिस दौर में जी रहे हैं वो इसी विकार का युग है। और वो विकार इसलिए है कि अब हमारे लोक जीवन को हमारी शास्त्र परंपरा संबोधित नहीं करती है। हमारे लोक जीवन को की वस्तु व्यवस्था को विज्ञान, तकनीक, आधुनिक सभ्यता और पश्चिमी ज्ञान परंपरा हमारे लोक जीवन को संबोधित करती है, उसको कभी कभी निर्देशित भी करती है। हमारी ज्ञान परंपरा जो है वो उसे संबोधित नहीं करती। और ये जो समीकरण बिगड़ा वो कैसे बिगड़ा? वो इस तरह से बिगड़ा कि भारत की ज्ञान परंपरा में ज्ञान की सभी विधाओं में एक लक्ष्योन्मुखी एक वाक्यता है। भारत में ज्ञान की जितनी विधाएं हैं उनमें एक लक्ष्योन्मुखी एक वाक्यता है। ज्ञान की सारी विधाएं एक ही विश्व दृष्टि की ओर उन्मुख होती हैं। और जब ज्ञान की सारी विधाओं में एक लक्ष्योन्मुखी एकता होती है तो ज्ञान की सारी विधाएं समवेत रूप से लोक जीवन में अनुदित होती हैं, एक सांस्कृतिक व्यवस्था में उनका सफल अनुवाद होता है। और जब ज्ञान के विधाओं की ये सिम्फोनी बिगड़ती है कि उनमें लक्ष्योन्मुखी एकता समाप्त हो जाती है, तो एक तरह से कहिए कि एक ज्ञान की विधाओं में एक अराजकता पैदा हो जाती है। सब ज्ञान की विधाएं अपने अपने रास्ते से चलने लगती हैं, उनमें कोई विश्व दृष्टि मूलक कोई लक्ष्योन्मुखी एकता नहीं रह जाती है, तो हमारी ज्ञान परंपरा हमारे लोक जीवन में अनुदित होना बंद कर देती है। और ये भारत में मित्रों इसलिए घटित हुआ कि हमारे जीवन को, हमारे लोक जीवन को किसी दूसरी ज्ञान परंपरा, किसी दूसरी सभ्यता दृष्टि ने इस कदर प्रभावित कर दिया है कि आज हम लोग ये प्रश्न उठाने के लिए विवश हो गए हैं कि क्या हमारी शास्त्र परंपरा केवल एक सैद्धांतिक और शुष्क ज्ञान की संरचना बन के तो नहीं रह गया है? क्या मेरे लोक जीवन से इसका संबंध विच्छेद हो गया है? क्या हम एक ज्ञानात्मक विच्छिन्नता के युग में जी रहे हैं? तभी ये प्रश्न हम लोग आज उठा रहे हैं। लेकिन फिर भी मित्रों, निराश होने की बात नहीं है। भारत की ज्ञान परंपरा में इस प्रकार की शक्ति है, उसका अमृत नाभ ऐसा है कि अभी भी भारतीय ज्ञान परंपरा या हमारे शास्त्र के जो प्रथम सिद्धांत हैं वो हमारे रोज रोज के जीवन के तो नहीं, लेकिन जब कभी भी किसी जाति के समय एक ऐतिहासिक संकट या एक सामूहिक अस्मिता का संकट पैदा होता है, तो हमारी ज्ञान परंपरा, हमारी शास्त्र परंपरा के आदर्श, निर्देश, विधि, निषेध अभी भी हमारे भारतीय जीवन को संबोधित करते हैं, अनुशासित करते हैं। भले हमारे व्यक्तिगत जीवन में न करें, लेकिन जब हमारे राष्ट्र के समक्ष, हमारे संस्कृति के समक्ष, हमारी पहचान के समक्ष जब कोई सामूहिक संकट पैदा होता है तो हमारी ज्ञान परंपरा हमें हस्तक्षेप करती है। और इसका एक प्रमाण है
कि इस सभा में जितने लोग बैठे हैं, यदि उनसे पूछा जाए कि आप लोग सीवी रमन को ज़्यादा महत्व देते हैं या महर्षि रमन को ज़्यादा महत्व देते हैं, इस सभागार में उपस्थित एक एक व्यक्ति कहेगा कि मेरे लिए महर्षि रमन ज़्यादा महत्वपूर्ण है, सीवी रमन की अपेक्षा वो ज़्यादा महत्वपूर्ण मेरे लिए महर्षि रमन है। मतलब अभी भी भारत की जो लोक चेतना है वो किसी वैज्ञानिक की अपेक्षा एक संत को ज़्यादा महत्व देती है। तो अगर हमारी लोक चेतना में अभी इतने संस्कार बचे हुए हैं, तो ये ऐसे संस्कार हैं कि हमारी शास्त्र और हमारे लोक का जो गर्भनाल का संबंध है उसे वो कभी सर टूटने नहीं देंगे। क्यों हम मतलब महर्षि रमन को ज़्यादा महत्व देते हैं? इसलिए कि हमारी शास्त्र परंपरा का प्रथम सिद्धांत है कि हमारे ज्ञान का आदर्श क्या है। हमारे ज्ञान का आदर्श है सर्वभूतेषु अनेकम भावमव्यय मीक्षते अविभक्तम विभक्तेषु ज्ञानम तद विद्धि सात्विकम। मेरे लिए ज्ञान का आदर्श क्या है? जो बटे हुए में अनबटे को देखता है। ये जो मेरा अद्वैत बोध का है, ये हमारे ज्ञान परंपरा का प्रथम सिद्धांत है। और अभी भी हमारे लोक जीवन को इस प्रकार के जो हमारे शास्त्र परंपरा के आदर्श हैं वो मेरे सामूहिक चित्त को जरूर अभी भी प्रभावित करते हैं। सामूहिक चित्त में उनकी जीवंतता बची हुई है। यद्यपि जिस प्रकार के चारों तरफ से हम लोग एक बाहरी सभ्यता के आक्रमण के दौर से गुजर रहे हैं, हमारी ज्ञान परंपरा, हमारी शास्त्र परंपरा को भी की पाचन शक्ति की ये परीक्षा की घड़ी है सर, कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है हमारी ज्ञान परंपरा का, वो कितना प्रबल होगा कि आने वाली जो स्थितियां हैं, जो एक साभ्यतिक ज्वार हमारी तरफ आ रहा है, हम अपनी निजता को कैसे बचा पाएंगे, इसके लिए चिंतित जरूर होने की ज़रूरत है। और इसी चिंता का परिणाम है कि हम ऐसे विषयों पर, इतने महत्वपूर्ण विषयों पर इस प्रकार का एक आत्मचेतन संकल्प के साथ इस प्रकार की संगोष्ठी कर रहे हैं। लेकिन हम आशा करते हैं कि यदि भारत की ज्ञान परंपरा सनातन ज्ञान परंपरा है, और सनातन ज्ञान परंपरा कहने का मतलब है कि मानव की सनातन आत्मा से उसका एक तालमेल है, तो इस धरती पर जब तक मनुष्य जब मनुष्यता की ओर झांकेगा, तब तक उसे अपने जीवन को, अपने सांस्कृतिक सामाजिक व्यवस्था को और अपने साभ्यतिक गति को भारत की शास्त्र परंपरा और भारतीय ज्ञान परंपरा की ओर उसे ले जाने के लिए विवश होना पड़ेगा। मैं इस अवसर पर सदाशिव द्विवेदी जी को बहुत धन्यवाद देता हूं कि इतने ज्वलंत विषय पर आपने मतलब इस संगोष्ठी का आयोजित करने का जो आपने एक उपक्रम किया, इसके लिए आप मेरी तरफ से, सभी वक्ताओं की ओर से, उपस्थित विद्वानों की ओर से सदाशिव जी आप बधाई के पात्र हैं। और बधाई के पात्र इसलिए भी हैं कि आप एक समृद्ध ज्ञान परंपरा के बहुत सशक्त और होनहार उत्तराधिकार हैं, इसलिए ये आपका दायित्व भी बनता है। और आपने इस सभा को संबोधित करने के लिए मेरे कुछ अस्त व्यस्त विचारों को मतलब रखने के लिए आपने अवसर दिया। मैं क्या कहूँ, धीराः कुशाग्र मतयोः भवतः प्रणम्य मौलो निधाय करवारी रुहे समीहे वाणीय मर्थ रहितापि विशृंखलापि सानुग्रहेन हृदयेन विभावनीया। सर के अध्यक्षीय उद्बोधन से हम सभी अत्यंत उपकृत हैं। हमें मानव जीवन के वो सूत्र मिल गए कि शास्त्र से अनुशासित हो हमारा लोक, और तभी वह सुंदर रह सकता है। तो आज का यह प्रथम तकनीकी सत्र यह स्पष्ट करता है कि लोक दृष्टि और मानव मूल्य भारतीय दर्शन के मूल में स्थित हैं।
And this session has beautifully shown that Indian philosophy is not only a system of thought but a way of life rooted in human values and lived experience. मैं सभी सम्मानित वक्ताओं, अध्यक्ष महोदय तथा विद्वान श्रोताओं का हृदय से धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ. And with this we formally conclude the first technical session. Thank you all. आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद. अगले सत्र के लिए हमारे आमंत्रित वक्तागण एवं अध्यक्ष महोदय सभी यहाँ पधार चुके हैं. आप लोग भी यहाँ बने रहें और मैं यहाँ अध्यक्ष पद के लिए, अगले सेशन के अध्यक्ष पद के लिए मंच पर सादर आमंत्रित करती हूँ आचार्य विजय शंकर शुक्ल सर को. कृपया आप मंच पर आ जाएं और हम शीघ्र ही अपना नया टेक्निकल सेशन यहाँ स्टार्ट करेंगे.